যদি টয়লেট পায় তাহলে বাড়িতেই যেতে লাগে। এখান থেকে বাড়িতে যেতে লাগে। अच्छा এখানে टॉयलेट व्यवस्था नहीं। सुन के हम लोग हैरान होते हैं कि बच्चा लोग को जब टॉयलेट आता है, लॉन्ग टॉयलेट में जाना चाहता है तो उसको घर जाना पड़ता है। ये हम लोग का आज के जमाने में ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है हम लोग। अच्छा हाथे पंखा नहीं आसो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। दोस्तों तो मैं बता दूं कि स्कूल की जो शिक्षा का जो व्यवस्था है काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। हम लोग अभी है जयगांव जूनियर हाई स्कूल में और यहाँ की जो समस्या है, विभिन्न समस्या से यहाँ के जो बच्चे हैं पीड़ित हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। हमें इसकी जानकारी मिली है, हम लोग यहाँ पहुंचे हुए, कुछ बच्चे यहाँ पर है। की समस्या है तुम्हारे এখানে? এখানে মানে খাইতে খুব অসুবিধা হয়, জলের খুব সমস্যা হয়। মানে কি খাইতে কি সমস্যা, মানে কি কেমন সমস্যা? মানে বসার জায়গা থাকে না, অনেক কিছু। জলের ব্যবস্থা? জলের ব্যবস্থা কোনো কোনো সময় জল পাওয়া যায় না। জল পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আর টয়লেট দেখতেছি ভালো নাই এখানে। না। তাহলে টয়লেট কোথায় যাও তোমরা? যদি টয়লেট পায় তাহলে বাড়িতেই যেতে লাগে। এখান থেকে বাড়িতে যেতে লাগে। আচ্ছা, এখানে টয়লেটের ব্যবস্থা নাই। কত ক্লাসে পড়ো তুমি? তুমি কি সমস্যা আছে এখানে? ওগুলোই ঠিক নেই, টয়লেটের সমস্যা, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা। আর স্কুলে পাঙ্খা টাঙ্খা আছে? না। পাঙ্খাও নাই? না, পাঙ্খা নেই। এখন এত রোদ্র হচ্ছে, কিভাবে? রোদ্রে ওই যে ওগুলো নিয়ে আসি। अच्छा हाथे पंखा नहीं आसो। हाँ। तुम हाथे पंखा नहीं आसो और हाथे पंखा डोलाए स्कूल बसे थको। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर विभिन्न समस्याएं। बच्चे जो है अपने घर से जो है हैंड पंखा, हाथ पंखा जो होता है वो लेके आते हैं। हमारे यहाँ पर मास्टर सर भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। স্যার এখানে স্কুলে অনেক সমস্যা আমরা শুনতেছি, কি বিশেষ সমস্যা কি আছে এখানে? সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা মানে জল সমস্যা। এখানে আমি ট্যাঙ্কি একটা বানিয়েছি এবং পায়খানা বাথরুমের মধ্যে জলের লাইনও দিয়েছিলাম, কিন্তু 7 দিন টেকেনি। সব অ্যান্টি সোশ্যাল লোকরা এখানে বিকেলবেলা আসে, তারা নেশা ভাঙ করে এবং তারা ভেঙে দিয়েছে। তারা বাথরুমে বসে পায়খানা করে ওইভাবেই রেখে যায় এবং বাথরুমে বসে বসে ওরা নেশা ভাঙটা করে। আর আমার এখানে ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা এখনো সম্ভব হয়নি, কারণ একবার ইলেকট্রিক ওয়ারিং করেছিলাম আমি। 10-12 দিনের মধ্যে সমস্ত তার খুলে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। লাগানোর 10-12 দিনের মধ্যে খুলে নিয়ে চলে গেছে। তারপরে অফিস রুমে আমাদের 2টা ফ্যান ছিল, তো অফিস রুমে কিন্তু লোহার গেটের হ্যাজবল কেটে তারপর ফ্যান 2টা চুরি নিয়ে চলে গেছে। আর এই যে ডাইনিং দেখছেন, এই ডাইনিং বানিয়েছিল গত 2022-এর নভেম্বরে। তো 2 মাস টিকেনি, ডাইনিং এর সব সেট ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে এবং অ্যান্টি সোশ্যাল লোকেরা লোহা যা পেয়েছিল সব ভেঙে নিয়ে গেছে। আর কাজ খুব নিম্নমানের হয়েছে, কারণ এই একটু নাড়া দিলে এটা পড়ে যেত এবং লোহাগুলো বেরিয়ে যেত। ওরা সুযোগ পেয়ে লোহাগুলো ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে এই ডাইনিং হল অকেজ হয়ে আছে। আমার বাচ্চাদের মিড ডে মিল খাওয়ায় খুব অসুবিধা হচ্ছে। কোথায় খায় বাচ্চারা? বাচ্চারা এখন এখানেও কিছু বসে খায়, বাইরেও বসে খায়, বারান্দায় বসে খায়, এরকম অবস্থায় আছে। মানে এখানে এটা বানায় কোনো লাভ না, কোনো লাভ হয়নি। কতগুলো বাচ্চা আছে স্কুলে? আমার বাচ্চা আছে এখন 665। আর টিচার কতগুলো আছে? টিচার আমি একা পার্মানেন্ট টিচার, আর সব ভলেন্টিয়ার টিচার দিয়ে এখানে ক্লাস চালানো হচ্ছে। অকেজ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। জোড়াতালি দিয়ে কোন রকম আমি বসানোর ব্যবস্থা করছি। কোনো সময় এখানে দেখতেছি অনেক শৌচালয় এরকম বানায়, এটা কি আছে? এটা ওই আমার স্কুলে ফোর্স ছিল, ফোর্সদের জন্য বানানো হয়েছে। তারপরে এমনি ছেড়ে চলে গেছে? হ্যাঁ, এমনি ছেড়ে চলে গেছে। तो दोस्तों मैं बता दूं ये जो समस्या है, काफी समस्या है जयगांव जूनियर हाई स्कूल में। और जयगांव कई लोग राजनीतिक भी करते हैं, लेकिन जयगांव के मैं बता दूं कि जय हिंद वाहिनी जो है तृणमूल की एक संगठन है, उनके द्वारा हमें बुलाया गया था, इस समस्या से अवगत कराया गया था। और काफी समस्या है इस स्कूल में। जय हिंद वाहिनी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर है, हम उन लोग से बात करेंगे। राणा जी क्या बोलेंगे? सबसे पहले नमस्कार।
जयगांव टुडे के पूरी टीम को और पूरे जयगांव वासी को। अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले हम लोग का टीम का साथ में हम लोग यहाँ आए थे स्कूल में। देखिए इधर में आप सभी को पता है जयगांव जूनियर हाई स्कूल है, काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है जयगांव के। यहाँ पे हमारे सरकार का बड़ा बड़ा सरकारी कैंप भी यहाँ पे होता था, तो आप लोग उस समय भी आए थे, देखे थे। तो हम लोग भी सब आते हैं इधर में। तो हम लोग देखिए हम लोग का जय हिंद वाहिनी जो है एक ऐसा हम लोग माध्यम है, एक ऐसा हम लोग संगठन है कि हम लोग समाज के लिए हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग एक बार आए थे स्कूल में दौरा करने के लिए, तो आके देखता हूँ ऐसा हालत में है। तो हम लोग जब हेड सर से हम लोग पूछे तो सर ने बताया कि ये करीबन 2 साल पहले चालू ये हुआ था काम। तो हम लोग देखे काम का हालत, तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कैसा हालत में है ना। इधर में बच्चा लोग बैठ सकते हैं। और आके सबसे बड़ा शौक हम लोग को लगा ये चीज़ कि बच्चा लोग को देखा कि बाहर इधर में मैदान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई बरामदा में खा रहा है, कोई हाथ में लेके खा रहा है। तो हम लोग को दुख लगा। आप लोग सभी जानते हैं, देखिए हम लोग का जो सुश्री ममता बनर्जी है, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री, उनका हर समय प्रयास रहता है समाज के लिए। और जो बेनिफिशियरी है सबको हर तरह का मुआवजा देते हैं सरकार की तरफ से। उनका हर कोशिश रहता है कि कैसे बंगला को सोनार बंगला बनाया जाए। उसके तहत स्कूल को भी फंड दिया जाता है। स्कूल को भी देखिए काम हुआ था, तो एक काम तो उस तरह से काम नहीं हुआ है। जो भी हो काम होने के बाद में हम लोग सुने कि यहाँ पे कुछ एंटी सोशल जो बाहर के लड़के लोग हैं वो आके कुछ इधर में तोड़ फोड़ करके इस चीज़ को बिगाड़ दिया है। और उपरंत आप टॉयलेट भी देख सकते हैं, टॉयलेट का भी हालत बहुत खराब है। सुन के हम लोग हैरान होते हैं कि बच्चा लोग को जब टॉयलेट आता है, लॉन्ग टॉयलेट में जाना चाहता है, तो उसको घर जाना पड़ता है। ये हम लोग का आज के ज़माने में ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ है हम लोग के लिए, सोच के भी हम लोग को खराब लगता है। तो इस विषय को लेके हम लोग जो हम लोग का टीम है सब बैठे, हम लोग हाल ही फिलहाल में हम लोग BDO साहब के पास गए और BDO साहब को हम लोग भी ये चीज़ बताया कि देखिए यहाँ का बहुत सारा समस्या है। तो हम लोग जो मेन फर्स्ट समस्या जो है, जो आपका डाइनिंग हॉल, हम लोग चाहते हैं कि इस डाइनिंग हॉल को फिर से अच्छा से रिपेयरिंग करके इसको चालू किया जाए। और साथ ही साथ आपका जो टॉयलेट वगैरह आप देख सकते हैं, पीछे आपको दिखा देंगे बाद में, जो टॉयलेट का जो अवस्था है इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और साथ ही साथ आपका जो बहुत सारा क्लास में फैन का भी समस्या है, किसी रूम में लाइट भी नहीं है, फैन का समस्या, ये सब चीज़, बाकी जो चीज़ है हर तरह का चीज़, छोटा मोटा चीज़ को हम लोग उसको रेक्टिफाई करके उसको सही से उपयोग किया जाए। तो इस विषय में हम लोग का एक ही दावी है। हम लोग इस दावी को लेके हम लोग BDO के पास गए थे। आप देख सकते हैं हम लोग हाल ही पे हम लोग जाके BDO के पास में ये हम लोग एक चिट्ठी देके आए हैं। तो BDO साहब हम लोग को रिसीव करके भी दिया है और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। BDO साहब जो है हम लोग का मिठुन मजमदार जी है, बहुत ही अच्छा से हम लोग का बात को सुने, गंभीरता से लिए इस विषय को और अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए बताया कि हम लोग को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ को रिपेयर किया जाएगा और जो आप लोग का टॉयलेट बाथरूम है उसको भी बनाया जाएगा नया तरह से। और साथ ही साथ हम लोग का जो इंजीनियर साहब है BDO ऑफिस का, वो भी हम लोग को बहुत सहयोग किया है, तो हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ है, हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोग का ये चीज़ पूरा नहीं होता है। ये जो आपका डाइनिंग हॉल है, आपका टॉयलेट बाथरूम है, जब तक नहीं होगा जय हिंद वाहिनी का तरफ से हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा। और বলছি যে এইমাত্র যে আশার বাণীটা শোনালেন আমাদের সৌভিক সাহা মহাশয়, তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হিন্দ বাহিনীর সেক্রেটারি সভাপতি, তো এতে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। আমি আশা করব যে সৌভিক বাবু আমাদের এই সমস্যাগুলো দিকে নজর দিন এবং আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান যদি উনি করতে পারেন তাহলে ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार, मैं हमारे स्कूल के जो हेड टीचर है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमारा बहुत ये धन्यवाद आभार किया। देखिए धन्यवाद मैं मेरा नहीं मानता हूँ, ये हमारा कुछ काम नहीं है। ये हम लोग धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सुप्रीमो, हमारे जो दल नेत्री, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को, कि उनका आदर्श से हम लोग चलते हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग एक दल का एक साधारण कर्मी है और एक कर्मी होने के नाते हम लोग का भी फर्ज बनता है कि समाज में जो मुश्किल है, जो जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए।